Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine. Welcome back in our today's English class. Our today's class is about Indian festivals. आज का हमारा क्लास है इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में. तो पहले हम थोड़ा रीड कर लेंगे और फिर मैं आपको So take out a learning series book. Open page number 31. All of you opened? Okay, now we will start reading. India is the land of festivals, and these festivals are eagerly awaited throughout the year. Indian festivals reflect the cluster of different religions and cultures in one nation. Entire atmosphere is filled with total zeal and zest the days before the festival. People in small villages or big cities all celebrate festival with full of energy and enthusiasm. Some Indian festivals are Holi, Diwali, Dashera, Durga Puja, Mahashivratri, Rakhi, etc. There are other festivals celebrated like Eid, Guru Nanak Jayanti, and Christmas, etc. People in our country love to celebrate festivals with their relatives and friends. People visit each other's houses to celebrate and offer best wishes of the festivals. India celebrates 3 national festivals with full of patriotism. The 3 national festivals. The Indian festivals truly reflect the culture of unity in diversity in India. स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ में हमारे फेस्टिवल्स के बारे में बताया है कि इंडिया एक लैंड ऑफ फेस्टिवल्स है. वहाँ पर तरह तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और लोग बहुत उसकी वेट करते हैं कि कब फेस्टिवल आए, अब हम उसे कैसे मनाएंगे, किसके साथ मनाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे. तो सबको उसकी एक ईगरनेस होती है, सब उसकी राह देख के बैठते कि कब फेस्टिवल आए और कब हम सब मिलके साथ में एंजॉय करें. तो यही सारे फेस्टिवल्स हमारे रिलीजियंस और कल्चर्स एक ही नेशन का एक रिफ्लेक्शन देता है कि वी बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी. चाहे हम सब भले अलग अलग रिलीजन के हैं, पर है तो हम सब एक. ऐसा नहीं है कि हम ये फेस्टिवल्स नहीं मनाते, हम ये मनाते नहीं. सब फेस्टिवल सब उत्सुकता से मनाते. तो यही एक रिफ्लेक्ट करता है कि वी बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी. चाहे फिर वो छोटा गांव हो या फिर बड़ा शहर, सब बहुत अच्छे से फेस्टिवल्स मनाते हैं. जेस्ट एंड ज़िल यानी कि बहुत उत्साह और जोश के साथ हम सब फेस्टिवल्स मनाते हैं. चाहे वो गांव के लोग हो के बड़े सिटी के लोग हो, सब पूरे एनर्जी और पूरे जोश और होश से मनाते हैं. हमारे इंडियन फेस्टिवल्स है जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, महाशिवरात्रि, राखी, ये सब हमारे इंडियन फेस्टिवल्स हैं. इनके अलावा हम ईद, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस, रक्षाबंधन, ये सब फेस्टिवल्स भी हम सब मनाते हैं. और हमारे कंट्री सब मनाते हैं. लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, बेस्ट विशेस ऑफर करते हैं, गिफ्ट ऑफर करते हैं. और हमारे इंडिया में 3 नेशनल फेस्टिवल है, तो लोग वो भी एक इंडियन भारतीय होने के नाते ये भी तीनों फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन करते हैं. तो 3 फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं नेशनल फेस्टिवल्स? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती.
तो यही हमारा एक रिफ्लेक्ट करता है कि हम अनेकता में एकता मानते हैं, है ना। एक बार फिर हम ये पैराग्राफ रीड करेंगे। India is the land of festivals, and these festivals are eagerly awaited throughout the year. Indian festivals reflect the cluster of different religions and cultures in one nation. Entire atmosphere is filled with total zeal and zest the days before the festival. People in small villages or big cities all celebrate festival with full of energy and enthusiasm. Some Indian festivals are Holi, Diwali, Dashera, Durga Puja, Mahashivratri, Rakhi, etc. There are other festivals celebrated like Eid, Guru Nanak Jayanti and Christmas. People in our country love to celebrate festivals with their relatives and friends. People visit each other's houses to celebrate and offer best wishes of the festivals. Farewell. Independence Day, Republic Day, and Gandhi Jayanti are the three national festivals. The Indian festivals truly reflect the culture of unity in diversity in India. Okay, students, now we will also learn about the past tense. Okay. Okay, now we will discuss about the past tense. So, open page number 32 of your textbook. All of you opened? Students, we all know that what are verbs. वर्ब्स यानी कि एक्शन वर्ड्स, जो वर्ड्स हमें कोई एक्शन दिखाते हैं उसको हम कहते हैं वर्ब्स। अब हमने देखा था कि तीन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या, तो जो एक्शन हम अभी कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस मतलब जो हो गया है, जो पहले हो गया था, 1 घंटे पहले, 1 दिन पहले, परसों, 1 साल पहले, 1 महीने पहले, तो उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। और जो होने वाला है उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो आज हम पास्ट टेंस के बारे में थोड़ा सीखेंगे। तो पास्ट तो हमने पहले बोला वर्ब्स भी लर्न किए थे, V1, V2 एंड V3। V1 यानी कि प्रेजेंट टेंस, V2 यानी कि पास्ट टेंस एंड V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। तो V2 फॉर्म है वो कौन सा वर्ब दिखाता है, पास्ट टेंस का। तो आप सबको पता चल गया कि पास्ट टेंस मतलब क्या। तो पास्ट टेंस मतलब जो चीज़ हमने कुछ समय पहले कर दिया है उसको आप कहते हैं पास्ट टेंस। और कौन सा टेबल में से कौन सा ग्रुप हमें पास्ट टेंस वाला वर्ब दिखाता है, V2 वाला, है ना। तो अब थोड़ा रीड कर लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं। वर्ब्स द पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, verbs that tell or write about things that happened in the past। मैंने बोला ना कि जो कुछ पहले हो गया है, पास्ट में हो गए, उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। नंबर 2, V2 फॉर्म ऑफ वर्ब्स आर यूज्ड टू शो द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस अगर हमें बताना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, V2 फॉर्म का। पास्ट टेंस के लिए हम कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, V2। अब उसके थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। रोहन वेंट टू अ मूवी यस्टरडे। तो यहाँ पर वेंट है तो गया था, यस्टरडे मतलब आई नहीं, जो कल जो चला गया है वो, तो कल रोहन पिक्चर देखने गया था। तो वेंट इज पास्ट टेंस। ओके, वेंट क्या है, पास्ट टेंस है। तो जब हम कुछ पहले की चीज़ दिखाने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने ये
मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनानास खाया था। तो इट का पास्ट टेंस इधर क्या हो गया, एट। क्या हो गया, एट। अब उन्होंने कुछ नोट भी हमें दी है। The words like yesterday, last week, last year, then, etc. are used to denote past tense. कौन से वर्ड्स हमें पास्ट टेंस डिनोट करते हैं? yesterday, last week, last year, then, ये सब चीज़ अगर है तो मतलब हमें यहाँ पर पास्ट टेंस के बारे में बात की है। ऐसे वर्ड आए तो हमें समझ लेना है कि यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो अब हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दी है और उनमें से हमें सही वर्ब चुनकर ये ब्लैंक्स लिखनी है। तो आर यू ऑल रेडी? ओके। नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन। आपको यहाँ पर ब्रैकेट में टेंस दिए, उनमें से हमें सही आंसर, पास्ट टेंस वाला आंसर चुन के ये ब्लैंक्स लिखनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं जो सही आंसर होगा उसके नीचे रेड लाइन करूँगी और ये आंसर आपको यहाँ पर ब्लैंक के अंदर लिखना है, आपको अंडरलाइन नहीं करनी है। सी आई कैन नॉट राइट, सो आई विल जस्ट पुट रेड लाइन ऑन द करेक्ट आंसर। जो आंसर होगा उसके नीचे मैं रेड लाइन करूँगी और वो आंसर आपको यहाँ पर जो ब्लैंक्स दी है उसमें लिखना है। ठीक है, आया समझ में? एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ। आई विल नॉट राइट द आंसर, आई विल जस्ट पुट अ रेड अंडरलाइन अंडर द करेक्ट आंसर एंड दैट आंसर यू हैव टू राइट इन द स्पेस। ओके, यहाँ पर जो आपको ब्लैंक्स दी है वहाँ पर आपको वो आंसर लिखना है। सो आर यू ऑल रेडी? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। नंबर 1, द कप। दो ऑप्शन दिए, स्लिप एंड स्लिप्ड। तो यहाँ पर पास्ट टेंस कौन सा हुआ? स्लिप्ड। देखो, काफ़ी पास्ट टेंस ईडी से एंड होते हैं। कैसे एंड होते हैं? ईडी से। तो द कप स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड्स एंड ब्रोक इनटू पीसेस। उसके हाथ से कप गिर गया था और वो पीसेस में, टुकड़ों में टूट गया था। तो फर्स्ट ब्लैंक का आंसर है स्लिप्ड एंड द नेक्स्ट इज ब्रोक। सो आपका पूरा सेंटेंस होगा, द कप स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड्स एंड ब्रोक इनटू पीसेस। ओके। नंबर 2, द सर्वेंट डैश द क्लोथ्स एंड डैश इट इन द सन। द सर्वेंट डैश द क्लोथ्स एंड डैश इट इन द सन। तो आपको फर्स्ट ब्लैंक के लिए दो ऑप्शन दिए हैं, वॉश्ड एंड वॉश। तो कौन सा आएगा इधर? विच इज द पास्ट टेंस? वॉश्ड। वेरी गुड। तो फर्स्ट ब्लैंक का आंसर होगा वॉश्ड। द सर्वेंट वॉश्ड द क्लोथ्स एंड डैश इट इन द सन। तो ड्राइड। सेकेंड ब्लैंक में क्या आएगा? ड्राइड। फिर से, द सर्वेंट वॉश्ड द क्लोथ्स एंड ड्राइड इट इन द सन। नंबर 3, a herd of elephant dashed the village last night. और अटैक्ड। आंसर क्या आएगा? अटैक्ड। क्या आंसर आएगा? अटैक्ड। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट अटैक्ड द विलेज लास्ट नाइट। थर्ड का आंसर क्या होगा? अटैक्ड। नंबर 4, सुहासी डैश हर बर्थडे यस्टरडे। सुहासी डैश हर बर्थडे यस्टरडे। सेलिब्रेटेड और सेलिब्रेट, क्या आंसर आएगा? मैंने आपको बोला था कि पास्ट टेंस ईडी से एंड होता है मोस्टली, तो यहाँ पर क्या आएगा? सेलिब्रेटेड। क्या आंसर आएगा? सेलिब्रेटेड। तो सुहासी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे यस्टरडे। नंबर 5, I dash
the stories very interesting. I dash the stories very interesting. So नंबर 5 का आंसर होगा फाउंड. क्या होगा? फाउंड. I found the stories very interesting. क्या? I found the stories very interesting. Number 6, a huge crowd dash to see the film star. A huge crowd dash to see the film star. तो इसका आंसर होगा gathered. क्या होगा इसका आंसर? Gathered. A huge crowd gathered to see the film star. Pretty in the pink dress. Priya dash pretty in the pink dress. Looked. क्या इसका आंसर होगा? Looked. क्या आएगा इसका आंसर? Looked. Priya looked pretty in the pink dress. Next, we dash a taxi to the airport. We dash a taxi to the airport. तो क्या आएगा इसका आंसर? Hired. क्या आंसर आएगा? Hired. We hired a taxi to the airport. Come to next page. Number 9. The teacher dash us some question. The teacher dash us some question. तो क्या आएगा? Asked और ask? Yes, very good. क्या आएगा? Asked. क्या आएगा? Asked. The teacher asked us some question. Once again I am repeating. The teacher asked us some question. Last, number 10th, the program dash at 6 p.m. last evening. The program dash at 6 p.m. last evening. तो उसका आंसर होगा begun. The program began at 6. Okay, now we will continue with past continuous tense. So student, do you know what is past continuous tense? Okay, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि past continuous tense मतलब क्या. तो जो वर्ब हमें ये दिखाता है कि कोई भी चीज़ कोई एक पॉइंट पर तो पहले मतलब पास्ट में कंटिन्यू हुआ था, उसको हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. क्या? जो वर्ब हमें कोई भी चीज़ का प्रोग्रेस कोई एक पॉइंट पर चल रहा था, उसको कहते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो एक बार हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वर्ब दैट टेल और राइट अबाउट थिंग दैट वाज इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट इन द पास्ट. अब उसका फॉर्म क्या है, उसका रूल क्या है? हाउ वी विल राइट इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. उसका फॉर्म क्या है, उसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे? तो वॉज और वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये उसका जनरल फॉर्म है. वॉज हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? जब सिंगुलर होगा. और वेयर कहाँ पर यूज़ करेंगे? जब प्लूरल होगा. जैसे कि आई वॉज राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड. She was drinking coffee yesterday. Ram was cycling yesterday evening. तो ये उसका फॉर्म हो गया. ठीक है, तो जहाँ पर सिंगुलर होगा वहाँ पर हम was यूज़ करेंगे, और जहाँ पर प्लूरल होगा वहाँ पर हम were यूज़ करेंगे. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म क्या है? was और were प्लस वर्ब प्लस आईएनजी.
अब हम उसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द बॉयज वेर प्लेइंग क्रिकेट। तो देखो यहाँ पर बॉयज, बॉयज तो प्लूरल हो गया, इट इज़ अ प्लूरल नाउन। यस, बॉयज इज अ प्लूरल नाउन। तो उन्होंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, हमने वेर। फिर वर्ब क्या आया, प्ले, और वर्ब के पीछे क्या लग गया, आईएनजी। द बॉयज वेर प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा एग्जाम्पल, अमर वॉज लर्निंग गिटार। अब अमर तो एक लड़के की बात हो रही, तो जब अमर अकेला एक है तो वो सिंगुलर नाउन हो गया। तो सिंगुलर है तो क्या इसने यूज़ किया, वॉज। वर्ब क्या है, लर्न, और वर्ब के पीछे आईएनजी। तो क्या हो गया, अमर वॉज लर्निंग गिटार। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज। जिया डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स यस्टरडे। जिया ने बहुत सारे काम कल किए थे। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। और हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं और उनके बेसिस पर हमें ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। तो एक एग्जांपल उन्होंने हमारे लिए करके दिया है। एट 5 जिया वॉज प्लेइंग। देखो यहाँ पर अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग दिए है। तो कल शाम को 6 से 7:30 बजे जिया पढ़ रही थी। फिर 9 से 9:30 वो डिनर ले रही थी। 4:30 से 6 बजे वो खेल रही थी, और 7:30 से 9 बजे वो टीवी देख रही थी। तो यहाँ पर 5 बजे, तो 4:30 से 6, तो उसके बीच में 5 बजे आता है, तो 5 बजे जिया खेल रही थी। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जिया वॉज प्लेइंग। अब नंबर 2, 8 तो 8 बजे यानी कि 8 o'clock को वो क्या कर रही थी, देखो 7:30 से 9 के बीच में 8 बजता है, तो वो टाइम पर वो क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, जिया वॉज वॉचिंग टीवी। 8 जिया वॉज वॉचिंग टीवी। जिया अकेली है तो वॉच, टीवी देख रही है तो वर्ब हो गया वॉच, वर्ब के पीछे आईएनजी। ओके, नेक्स्ट एट 6:30 तो शी वॉज राइटिंग। यहाँ पर आपको देख रहे कि वो कुछ लिख रही है, तो जिया वॉज राइटिंग। एट 6:30 जिया वॉज राइटिंग। नाउ कम टू पेज नंबर 34। एट 9:15 तो वो खाना खा रही है, तो एट 9:15 जिया वॉज ईटिंग। होप ये आपको समझ में आ गया हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, fill in the blanks with the past continuous tense of the verbs given in the brackets। अभी आपको यहाँ पर fill in the blanks दी है और वो किससे फिल करने हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और वर्ब आपको ब्रैकेट में दिया है, तो वही वर्ब को लेके हमें ये सेंटेंस को पूरा करना है। नाउ नंबर 1, द सन डैश ब्राइटली, और ब्रैकेट में दिया है शाइन। Now sun is again a singular noun. So what we will use? Was or were? Yes, was. So the sun was shining
brightly. The sun was shining brightly. Number 2, the birds dash merrily. यहाँ पर नाउन प्लूरल फॉर्म में है, बर्ड्स है, तो क्या आएगा वॉस की वे? यस, क्या आएगा? वे, WERE, वे, चिरपिंग, CHIRPING. The birds were chirping merrily. The birds were chirping merrily. Number 3, नीता डैश हर ब्रेकफास्ट. नीता सिंगुलर नाउन है तो क्या यूज करेंगे? वॉस. क्या यूज करेंगे? वॉस. ब्रैकेट में हमें कौन सा वर्ब दिया है? इट. तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस है तो ईटिंग. नीता वॉज ईटिंग हर ब्रेकफास्ट. क्या आएगा? नीता वॉज eating her breakfast. Number 4, her class dash for a picnic that day. Her class, एक क्लास की बात की है तो क्या आएगा? was. her class was. अब हमें वर्ब कौन सा लेना है? go, और उसके पीछे ing. her class was going for a picnic that day. Next, number 5, Nita's mother dash her tomato sandwiches and chocolate pastries. Nita's mother यानी कि नीता की मम्मी, तो वो सिंगुलर होगी मम्मी, तो क्या आएगा? was. और हमें वर्ब क्या दिया है? give, तो क्या हो जाएगा उसका पास्ट कंटिन्यूअस? गिविंग. तो Nita's mother was giving her tomato sandwiches and chocolate pastries. Once again, Nita's mother was giving her tomato sandwiches and chocolate pastries. Next, number 6, the school bus dashed to pick her up. The school bus was dash to pick her up. अब यहाँ पर बस सिंगुलर नाउन है तो क्या हम यूज करेंगे? was. And which verb is given here? come. So coming. The school bus was coming to pick her up. The school bus was coming to pick her up. Now next, mother dash Nita to be careful. Mother dash Nita to be careful. तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ब दिया है? टेल. अब नाउन मदर, तो मदर इज सिंगुलर, सो व्हाट विल कम? वॉस. क्या आएगा इधर? वॉस. और टेल के पीछे क्या लग जाएगा? ing. मदर वॉज टेलिंग नीता टू बी केयरफुल. मदर वॉज टेलिंग नीता टू बी careful. Last, number 8, Naman dash to the conversation between Nita and mother. Naman dash to the conversation between Nita and mother. तो यहाँ पर नमन एक लड़के की बात है तो क्या आएगा? was. कौन सा वर्ब दिया है? listen. तो क्या हो जाएगा? listening. LISTENING.
Naman was listening to the conversation between Nita and mother. Naman was listening to the conversation between Nita and mother. Okay, students, we end up here our exercise. Okay, students, now open page number 35. On page number 35, you have given some synonyms and antonyms. तो आप सबको पता है कि synonyms and antonyms मतलब क्या? तो सबसे पहले synonyms का मीनिंग हम देख लेते हैं. तो synonyms मतलब ऐसे वर्ड के वो मीनिंग्स होते हैं, वो सिमिलर वर्ड्स है. synonyms मतलब सिमिलर मीनिंग. synonyms मतलब क्या होता है? वो वर्ड का सेम मीनिंग. और एंटोनियम मतलब उसका अपोजिट. एंटोनियम का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड. और सिनोनियम मतलब उसका सेम मीनिंग. तो आपको पेज नंबर 35 पर थोड़े सिनोनियम्स दिए हैं और पेज नंबर 36 के ऊपर एंटोनियम्स. तो ये दोनों पेज आपका होमवर्क है और वो पेज आपको फेयर बुक में लिखना है. This is your homework and this you have to write in your fair book. Okay. Now open page number 36. On page number 36 you have given some antonyms. यहाँ पर क्या दिया है आपको? Antonyms. तो ये भी आपको अपने फेयर बुक में लिखने हैं. पेज नंबर 35 के ऊपर सिनोनिम्स यानी कि मीनिंग्स दिए हैं और पेज नंबर 36 के ऊपर आपको एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट्स दिए हैं. तो ये भी आपका होमवर्क है और ये आपको फेयर बुक में लिखना है. ठीक है, कहाँ पर लिखना है? फेयर बुक में. ओके स्टूडेंट्स, we end up here our today's class. We will meet soon. Till that, goodbye and take care.